desire to go for Zoom platform, and accordingly we will follow now Zoom platform. So we have here 40 minutes time limit. So we will continue with the lecture, and with the same link, if you have questions, you have to join with it. Okay. So last time, this is our third lecture for Padartha Vidnyan. So we will continue with the Padartha Vidnyan, and as the Sanskrit subject will start by other teacher also, we will start for the Sanskrit also. So for introduction to basic principles of Ayurveda and their significance, we are discussing especially the Moolabhut Siddhanta or Maulik Siddhanta of our Ayurveda. Okay. So let's go for the. We have seen the Siddhanta, Moolabhut Siddhanta, Loka Purusha Samya Siddhanta. We have seen it. Do you remember? Anyone? Can you reply? What is the Loka Purusha Samya Siddhanta? What? Yes. Anyone can reply? What is Loka Purusha Samya Siddhanta? Similarities between universe and human body, sir. Very nice. Thank you very much. So be proactive. So there is a similarity between the universe and the human body or the individual one, that is Purusha. Now see, this similarity, Sushrutacharya has explained that Visarga Adana Vikshepa. Last time we have seen it. Okay, do you remember? Yeah, Visarga Adana Vikshepa. That is union, transformations, and the movement. And sequentially, these functions are performed by Soma in the Loka, that is the moon, Surya, that is the sun in the Loka, and Anila, that is the Loka. Vikshepa is done by Anila. Now the same functions are performed in the human body by Kapha, Pitta, and Vata sequentially. Okay, so we'll go for the next very important concept, that is the Triguna Siddhanta. So for Triguna Siddhanta, tri means three. Guna means the properties or the qualities, and Siddhanta is the concept. Now, when we will see the next our syllabus or curriculum point, that is the Darshana or the philosophical aspects of our Indian system, that we will follow. Okay. When we will see that, you can understand the point very nicely, but I will try to explain it as if it is necessary. So त्रिगुण सिद्धांत जो है वो सृष्टि का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो बहुत सारे दर्शनकार है या फिलोसॉफिकल स्कूल्स है, जैसे सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, आयुर्वेद भी आस्तिक फिलोसॉफी है या आस्तिक हम सिद्धांत या शास्त्र कहेंगे उसे, वो प्रस्थापित करता है त्रिगुण सिद्धांत को। तो हर सृष्टि का जो कण कण है वो तीन गुणों से बना हुआ है. There are three fundamental features of the nature. They are Satva, Raja and Tama. Satva, Raja, Tama, इन तीन गुणों को ही त्रिगुण कहा जाता है. हर कोई चीज हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो त्रिगुणों से ही बनी है, और उसमें प्राधान्य कभी सत्व का होता है, कभी रज का होता है और तम का होता है. अब देखिए, हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है, वो आगे जाके हम देखने वाले हैं. पहले सत्व को समझेंगे. सत्व क्या है? सत्व प्रकाशक है. इट इज द पाथ ऑफ लाइट, नॉलेज. इट इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. मीन्स सत्व को साक्षात सत्य कहा गया है. रज जो है, वो रज क्या है? वो चल है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट हैपनिंग इन द यूनिवर्स, as well as at the human body is also a part of universe. So रज जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और सत्व जो है वो एनर्जी ऑफ कॉग्निशन है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है.
और तम क्या है, तो इट इज मटेरियल मैटर। सो वो विशेषतः डार्कनेस या इनर्शिया, इमूवमेंट, ये दर्शाता है। चलिए मैं थोड़ा अपने कनेक्शन के लिए थोड़ी, आज काफी लेक्चर्स है तो मैं थोड़ा वीडियो अपना बंद कर देता हूं, आगे जाएंगे हम। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, दीज आर द 3 क्वालिटीज ऑफ द नेचर। हियर इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन। सत्व, रज एंड तम। सत्व represents lightness, consciousness, clarity. Raja is for motion and stimulation, and tama is heaviness and resistance. कोई भी घटना हो उसके लिए ये सत्व, रज, तम तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आप नए एक विषय का आप अध्ययन कर रहे हो, जैसे त्रिगुण सिद्धांत, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सत्व की आवश्यकता होती है, तभी आप उस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। अब देखिए, अगर आप लेटे हुए लेक्चर सुन रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इनर्शिया डेवलप हो जाएगा, आपको ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं होगा, यानी तम का वहां पे प्राधान्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तम का प्राधान्य आ गया और ज्ञान ये हो गया तम। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूं, और ये ज्ञान ग्रहण करने के बाद अगर उस ज्ञान से आप कुछ मूवमेंट करो, कुछ स्किल अडॉप्ट करो, उसके लिए कुछ मोशन करो, स्टिमुलेशन आपको मिल जाए, तो उसको रज कहते हैं। तो इस प्रकार कोई भी एक छोटी सी क्रिया हो, उसके लिए शुरुआत करना, प्रारंभ करना सत्व हमें वो अंश देता है, उसके लिए क्रियामान होना हमें रज के अनुसार ये होता है, और कहाँ रुकना है, कहाँ ये चीजें स्टॉप करनी है, वो हमें तम जो है वो क्रिया करता है। तो इस प्रकार से त्रिगुण ही आवश्यक है प्रत्येक क्रिया के लिए, सत्व, रज और तम। जब हम सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत देखेंगे आगे जाके, जब हम इसके और डिटेल्स विषय के बारे में जानेंगे, पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट में ही वो टॉपिक है, तो और अच्छे से ये सत्व, रज, तम आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी क्रिया हो उसको करने के लिए मोशन या स्टिमुलेशन लगता ही है, तो वह रज के कारण है। सत्व जो है वो आपको ज्ञान प्रदान करता है, और तम आपको कहाँ रुकना है वह बताता है, कहाँ आपको ठहरना है, कहाँ आपने स्टॉप वो प्रोसेस करनी है, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो ये सत्व, रज, तम इकट्ठा मिलके, कोई एक इसके लिए आवश्यक नहीं है, तीनों आवश्यक है, लेकिन वो प्रमाणतः आवश्यक है। सो भगवद गीता में चैप्टर 17 में ये थियरी अच्छे से बताई है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से एक्चुअली इंडियन फिलोसॉफी जो है उसका एक आदर्श ऐसा ये हमारी संहिता है भगवद गीता। उसको त्रिगुण थियरी जो है वो विशेषतः हमारे आयुर्वेद के लिए, और भगवद गीता में भी जो बताया है कि मनुष्य की या मानव की जो साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी मानसिक जो बनावट है वो किस प्रकार की है, वो जानने के लिए, किस सत्व का डोमिनेंस है उस बॉडी में, ये उस व्यक्ति में, या रज का है या तम का है, ये जानने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी मानसिक स्थिति जानने के लिए सत्व, रज, तम बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैसा हमने देखा, दीज आर दी 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स और द एनर्जीज, स्पेशली थिंकिंग ऑफ माइंड, प्रैक्टिकली अप्लाइड एस्पेक्ट। तो मनुष्य के बारे में या चिकित्सक के दृष्टि से हमें सत्व, रज, तम कहाँ पे उपयुक्त है, तो उसकी माइंड सेट क्या है वो जानने के लिए, उसकी मानस प्रकृति क्या है वो जानने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, वो तो हम दर्शन शास्त्र जब सीखेंगे, जो हमें बहुत ही आयुर्वेद सिद्धांत समझने के लिए उपयुक्त पैरेलल जो साइंसेस थे उस वक्त के, उसके लिए हम अलग से लेक्चर्स लेने वाले हैं, टॉपिक अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर अप्लाइड एस्पेक्ट से देखें तो सत्व, रज, तम जो है वो मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की देखने के लिए, हमें वो स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हो या चिकित्सा करने के लिए हो, बहुत ही आवश्यक हो जाती है बेसिकली। इसीलिए आप यहाँ अगर शब्द देखोगे तो मानस प्रकृति, यह आपको वहां पे शब्द मिलता है। तो मानस प्रकृति जो है
वह स्थिति दर्शाती है विशेषता। देखिए मानस प्रकृति, यह स्थिति विशेषता हमें दर्शाती है उस व्यक्ति के माइंडसेट के लिए। बेसिकली साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन 3 गुणों पे ही आधारित होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सत्व रज तम, अगर इसको हम अच्छे से जानेंगे तो आप देखिए अभी all individuals they are having a combination of all these 3 means कभी कभी क्या होता है वो सत्व रजतम जो है उनमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी उनमें बैलेंस समतोल होना चाहिए, लेकिन वह हमें कभी कभी दिखता नहीं और उसके वजह से मानस व्याधि साइकोलॉजिकल डिसीजेस उस व्यक्ति को हो जाते हैं। इसीलिए सत्व रजतम जो है उनका समतोल बहुत ही आवश्यक है। तो प्रथम वर्ष में हमें समझने के लिए आसानी से हम समझेंगे कि हम सत्व कैरेक्टरिस्टिक इसका इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है या मानस प्रकृति सात्विक है कैसे जानेंगे। तो वह व्यक्ति जो है वह विशेषतः उसके जो ज्ञानेंद्रिया है बहुत ही अच्छे से काम करेगी और बहुत समतल दृष्टि से समभाव दृष्टि से सभी की ओर देखेगा। ओके, सो इन सत्व is characterized by lightness, consciousness, pleasure and clarity, and basically it is very pure and free from the disease and cannot be disturbed in any way। ये जो सत्व प्रधान प्रकृति रहेगी, मानस प्रकृति रहेगी उस व्यक्ति की, वो जो सृष्टि में या आजू बाजू में घटनाएं होंगी उससे विचलित नहीं होगा और उसको कोई भी मानस व्याधि भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा सात्विक प्रकृति। इसको और डिटेल में जा सकते हैं लेकिन हमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे आगे जब भी विषय आएंगे तो उसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे। राजस प्रकृति या राजस व्यक्ति कैसी होती है? मानसिक प्रकृति वाली व्यक्ति वो बहुत ही एक्टिव है, जिसे हम हाइपर एक्टिव कहेंगे। इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी। सुबह जब उठेगा तो रात सोते वक्त वो इतनी क्रियाएं करता रहता है वह व्यक्ति, तो उसमें बहुत ही मूवमेंट प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है, मोशन एंड स्टिमुलेशन विशेषता उसमें ज्यादा रहती है। ऑल डिजायर्स विशेष एम्बिशंस। ओके, सो ये जो है वो व्यक्ति एक ही वक्त पे उसको ये सब चीजें करने के लिए उसको लगता है मैंने करनी चाहिए। आगे जाएंगे तमस प्रकृति। तो तामस जो है वो विशेषता हेवीनेस को रिप्रेजेंट करता है या ठहरना, रेजिस्टेंस। सो इट प्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ एक्टिवनेस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। तो अगर हम ज्यादा खा लिए या ज्यादा हमने नींद ले ली तो जो स्थिति आ जाती है वो तम की स्थिति है। ठीक है, सो डिल्यूजन, फॉल्स नॉलेज, लेजीनेस, स्लीप, ड्राउजीनेस, apathy, so such kind of disturbances of mind or deformities of psychological issues this personality can face। so ये होगी मानस प्रकृति सत्व रजा और तम की। तो इन शॉर्ट मैंने ये नेट पे से ही लिया हुआ है, एक सामान्यतया समझने के लिए बहुत आसानी से ये टेबल जो है वो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो सात्विक, राजस और तामस व्यक्ति किस प्रकार की होती है, जैसा हमने अभी डिटेल में देखा, तो ये सारी चीजें हैं। क्रिया शारीर विषय में ये और ज्यादा आप अच्छे से समझोगे। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे होता है। दूसरा सिद्धांत हमने देखा त्रिगुण सिद्धांत। ओके, त्रिगुण सिद्धांत के बाद हम जाएंगे तीसरा सिद्धांत पंचमहाभूत सिद्धांत। पंचमहाभूत सिद्धांत जो है वो क्या है? पंचमहाभूत सिद्धांत तो हमने देखा कि विशेषतः एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 ग्रेट एलिमेंट्स। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, मीन्स अस्मिन अर्थे मीन्स आयुर्वेद शास्त्र के लिए, हमारे शास्त्र के लिए सभी वस्तुएं जो है यच्च यावत जो भाव पदार्थ है वो कैसे है? तो वह विशेषतः, सभी स्टूडेंट एडमिट हो गए? ओके, वह सभी जो है वह 5 महाभूतों से ही बने हैं। सो पंच मीन्स 5, maha means great or huge, you cannot count. Bhuta means the existing elements or which do exist, that is bhuta. And siddhanta we have detailed, we have seen the types of siddhanta also. Since siddhanta
is the theory or the concept. Okay, we should say scientific theory. So sarvam dravyam panchbhautikam asmin arthe. What it means? That हमारे शास्त्र के लिए सभी वस्तुएं जो है वो पांच महाभूतों से बनी है। पांच महाभूतों से बनी है, तो ये पांच घटक कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी। अब देखिए, हर एक घटक में, हर एक चीज में जो है ये पांच महाभूत होते हैं। कम ज्यादा उसका प्रमाण होता है। मैंने वीडियो इसलिए चालू किया कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे ये पेन है, तो ये पेन पदार्थ जो है वह भी पांच घटकों से बना है। जैसे इसको वेट है या उसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, आकृति हम देख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वी महाभूत इसमें है, अर्थ एलिमेंट इसमें है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जल या वाटर, पानी इसमें है, तो द्रव पदार्थ इसमें है। तो जो जल रहेगा, जो इंक रहेगी, उसमें वो द्रवांश है, इसीलिए उसको हम लिख पाते हैं। आपने कभी प्रयोग किया है कि कभी कभी क्या हो जाता है, ये अपने ठंड का सीजन जो होता है, विंटर सीजन, इसमें ये थिक हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल के रिफिल को अच्छे से ऐसे मलते हैं शरीर के ऊपर। ठीक है, ऐसे, और फिर वो पतला हो जाता है थोड़ा शरीर के हमारे हीट से, और वह लिख पाते हैं वो रिफिल से हम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसमें द्रव पदार्थ यानी जल महाभूत इसमें है। उसके बाद है अग्नि महाभूत। आप कहोगे अग्नि यानी इसमें फायर दिखना चाहिए। फायर एक उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो भी कलरफुल चीजें हैं, जो कलर्स है, डिफरेंट कलर्स है, वो सभी है केवल और केवल किसके कारण? तो फायर के कारण। तो इसको जो भी ब्लू कलर है पेन को, या अपने इंक को, जो भी इस रिफिल में आप देख सकते हो इसमें ब्लू कलर है, तो ये कलर जो है वो केवल अग्नि महाभूत से है। अब वायु कहाँ से आ गया? तो वायु देखिए, ये मैंने आपको इसीलिए रिफिल का एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, होप आप ठीक से जान पा रहे हो उसको। तो ये जो मैंने रिफिल अगर इसमें से निकाला, तो इसमें जो हॉलो पोर्शन आ जाता है, इसीलिए हम इसमें रिफिल जो है वो आसानी से हम डाल सकते हैं। जो भी हॉलो पोर्शन है, ओके, तो हॉलो पोर्शन है वह है आकाश महाभूत, और जहां जहां स्पेस है वहां वायु महाभूत है। इसलिए हमें कंटेनर वैक्यूम टाइट करने पड़ते हैं। तो वैक्यूम या स्पेस जो है, सॉरी, स्पेस जो है आकाश महाभूत है, और उसमें आकाश कभी भी वह वायु के बगैर नहीं रहता। मैं पृथ्वी महाभूत या पृथ्वी हमारे प्लैनेट की बात कर रहा हूं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, अब प्लैनेट की बात निकली, तो इस प्रकार से मैंने पेन का सिंपल एग्जांपल दिया। ऐसे ही हमारा मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर भी पांच महाभूतों से बना है। तो आइए नेक्स्ट हम कुछ चीजें के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो सृष्टि में विशेषतः ये जो सिंबॉलिक आप देख रहे हो, वो है अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, स्पेस, एयर और फायर। अब इसको वेरी सिंपली अगर हम पीरियोडिक टेबल जैसा हम कंसिडर करें, उसके साथ अगर हम ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, केमिस्ट्री में आपने 12th में या उससे भी पहले देखा है कि देयर आर नो सर्टेन नंबर ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये मूलभूत द्रव्य जो है उनके आपने पीरियोडिक टेबल इससे पहले आपने जाना है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है वो आप एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के तौर पे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वो 5 घटकों में उसको विभाजित किया है। आकाश, वायु, अग्नि या तेज, जल या आप और पृथ्वी। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज समझेंगे तो आकाश क्या है? तो एम्प्टी एरिया ऑफ कॉस्मोस which is frictionless, okay, and the sound is due to the आकाश महाभूत। ये इसको हम जानने वाले हैं आगे बहुत डिटेल में, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 ग्रेट एलिमेंट्स। वायु वो क्या है? तो ये लाइट या सब्टिल टच है। ओके, तो सेंस ऑर्गन जो है उसकी आप तालिका सामने देखोगे, आकाश महाभूत
कानों में या ईयर्स में, कर्ण जिसे संस्कृत में कहते हैं, उसमें अधिकता से होता है। वायु महाभूत जो होता है वह त्वचा में अधिकता से होता है। अग्नि महाभूत जो है वो आंखों में ज्यादा होता है, ज्यादा प्रमाण में होता है। जल महाभूत जो है वो अपनी जीवा में या टंग में ज्यादा होता है। पृथ्वी महाभूत जो है वो नोज में ज्यादा होता है। और इसीलिए पृथ्वी महाभूत जो है वो नोज में ज्यादा है, इसीलिए सेंस परसेप्शन हम नोज से करते हैं, न कि किसी अन्य ज्ञानेंद्रिय से। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पंच महाभूता। उसको अगर हम और अच्छे से समझेंगे मनुष्य शरीर में किस प्रकार से वो मौजूद है, तो आप देखेंगे आकाश महाभूत यानी स्पेस जो है वो विशेषता एम्प्टी स्पेसेस शरीर में जहां जहां भी है मनुष्य के, जैसे अपने माउथ कैविटी है, नॉस्ट्रिल्स है, एब्डोमेन में विशेषता जो विभिन्न अवयव रहते हैं, जैसे स्टमक हो, स्त्रियों में यूटेरस हो, ठीक है, तो वो सभी चीजें वो स्पेस महाभूत का रिप्रेजेंटेशन करती है। एयर यानी वायु महाभूत कहाँ कहाँ पे है, जहां जहां आपको शरीर में मनुष्य की मूवमेंट्स दिखती है, वो हार्ट बीट हो, वॉलेंटरी हो या इनवॉलेंटरी हो, जैसे मस्कुलर या नर्वस सिस्टम की क्रियाएं। ओके, सो दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायु महाभूत शरीर में कैसे है। फायर यानी तेज महाभूत वो कैसे है, तो जो भी पचन की या ट्रांसफॉर्मेशन की क्रियाएं होती है शरीर में वो सभी वायु महाभूत फायर या तेज महाभूत अग्नि महाभूत से होती है। We can correlate that in the human body there are different enzymes and gastric juices which are responsible for the digestion of the food. They are all a representative of Agni Mahabhuta, fire element in human body. So digestive system, metabolism जो होता है उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल घटक रहेंगे वो सभी तेज महाभूत की वजह से होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे आप महाभूत। तो आप महाभूत क्या है, तो वह वाटरी सब्सटेंस है, केवल वाटर नहीं, इट इज ऑल बॉडी फ्लूइड्स सच एज सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस, प्लाज्मा, ब्लड में जो वाटरी कंटेंट रहता है विशेषता प्लाज्मा जिसे हमने यहाँ पे लिखा है, वो सभी जल महाभूत के रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत शरीर में कैसे है देखिए, तो ऑल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लाइक बोन्स, टीथ, फ्लैश एंड हेयर्स एटसेट्रा, दोज ऑल आर द symbolic representation we can say of earth element or prithvi mahabhut in human body. So thus human body is also made up of panch mahabhuta. So if I want to elaborate this concept or concise this concept in very short manner, that the structural description, anatomy जो है या रचना शारीर आयुर्वेद में अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पंचमहाभूत सिद्धांत है। पंचमहाभूत सिद्धांत के द्वारा वह स्पष्ट किया गया है। और आपको अगर फिजियोलॉजी देखनी है, आपको अगर क्रियाएं देखनी है, प्रोसेस कैसी होती है ह्यूमन बॉडी, उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है वहां पे, रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया है विशेषतः क्रिया के लिए त्रिदोष सिद्धांत, जो हम बाद में देखने वाले सिद्धांत है। ठीक है, anyone want to say something? Okay, you can unmute your mic and you can say if you want to know more. Next, so Rachanat, Sir, yes please. we have a lecture at 10:30, sir. Rachana studies. But my period is of 9:45 to 10:45, no? Okay, so I will Yes, continue sir. with it. Elaboration. If somebody wants to leave and join, please you can. Okay, so I will take till at least 10:40. So ये एक दूसरे से जुड़ी बातें हैं सब। हमने जैसे अभी आप देखोगे कि सत्व रजतम ये देखा, ठीक है, सत्व रजतम। ओके, और अभी हम देख रहे हैं आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। और इससे ही वात, पित्त, कफ यानी त्रिदोष जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, क्रियात्मक घटक शरीर के, ये वात, पित्त, कफ बनते हैं। तो देखिए, तो सत्व रजतम is a basic thing, that is Triguna Siddhanta, and from Triguna
the Panchamahabhutas are formed, and from Panchamahabhuta, the Vata, Pitta, Kaphas are formed. Okay, so there is a correlation, and this is a very nice picture I got from when I was reviewing about this chapter. So you can see it. Next now concept is Tridosha Siddhanta. So do you have any question about Panchamahabhuta Siddhanta? So Panchamahabhuta Siddhanta is very simple. Everything is made up of 5 elements. As I given examples of formation of pen. So similarly, you can explain about the other material things also. कम ज्यादा मात्रा में हर एक वस्तु में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत होते ही है। ठीक है, तो 5 महाभूतों के सिवा कुछ भी नहीं बनता। जो चीज ज्यादा होती है उसको हम उस महाभूत का नामकरण देते हैं। तो ये हम बाद में समझेंगे। अभी चौथे सिद्धांत की तरफ जाते हैं, त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत को जाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये की आप देख रहे हो इस पीपीटी में। तो त्रिदोष सिद्धांत अगर आप समझोगे तो आयुर्वेद का जो ट्रेजर है, त्रिदोष सिद्धांत की है, वो चाबी है। तो आयुर्वेद का जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए त्रिदोष सिद्धांत समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो त्रिदोष सिद्धांत क्या है? त्रि माने 3, दोष ये परिभाषिक या टर्म है अपने शास्त्र की, आयुर्वेद शास्त्र की। इसको दोष को हम फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या क्रियात्मक घटक आयुर्वेद का सिद्धांत कहेंगे, और सिद्धांत को आप जानते हो साइंटिफिक थियरी। तो विच दीज 3 थिंग्स आर वायु, पित्तम, कफस चोक्ता शारीरो दोष संग्रह। और अष्टांग हृदय, ये रेड लाइन आप देख रहे हो, वायु, पित्तम, कफस चेति त्रयो दोषाः समासताः। तो वात, पित्त और कफ ये जो है वो 3 दोष है। और यहाँ पे च शब्द है, च, कफस चेति, यहाँ पे भी च शब्द है, देखिए। तो चरकाचार्य भी च ये बताते हैं, और अष्टांग हृदयकार भी, वाग्भटाचार्य भी च शब्द देते हैं। यानी क्या है, इसमें आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। 3 ही दोष है, वात, पित्त और कफ, ये शारीर दोष है। और चरकाचार्य दूसरे लाइन में बताते हैं रज और तम ये मन के दोष है। ये वात, पित्त, कफ शारीर के दोष है। और अगर मानसिक साइकोलॉजिकल आप बातें करते हो उस प्लेटफॉर्म में, तो रज और तम ये दोनों दोष है। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक इस 2 ग्रुप्स में अगर हम इसको विभाजित करें तो शारीरिक दोष और मानसिक दोष रज और तम है। Okay, so in other words, we can say that Sharirik dosha are generally called biological elements, and Manasik doshas are considered as a psychological constitution, as we have discussed in Satva, Raja, Tama, that is Triguna. ठीक है, तो वात, पित्त, कफ जो है उनके फिर उप प्रकार होते हैं। क्रिया शारीर विषय में इसका बहुत विस्तार से आप अध्ययन करने वाले हो। तो संहिता विषय में हम पदार्थ विज्ञान में खास करके इसको, इस टेबल को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाने वाला यह प्रश्न होता है। क्या है वो? शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के दोष होते हैं। शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ, और मानसिक दोष रज एवं तम। अब जाते हैं आगे। तो त्रिदोष थियरी जो है वो न केवल हमें क्रिया शरीर की समझाती है, अपितु ये आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि आपको आगे जाके जो ट्रीटमेंट करनी है वो भी आपको त्रिदोष थियरी पे ही ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहेगी। तो त्रिदोष जो है वो भी सृष्टि का पदार्थ है, ये शरीर का घटक है, वो भी पंच महाभूतों से ही बना है। तो उसको अगर हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की लाइंस देखेंगे कि आकाश और वायु महाभूत के संयोग से वात दोष बनता है। ठीक है, देन अग्नि और जल महाभूत के संयोग से, एकत्रीकरण से प्राधान्यतः पृथ्वी पित्त दोष बनता है, और पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत इनके संयोग से कफ दोष बनता है। तो ये वात, पित्त, कफ भी जो है
वो 5 महाभूतों से ही बने हैं। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, आप इसको ठीक से याद रखें। बेसिकली त्रिदोष थियरी is based on the logic of very simplest way one can understand and complexity of human body। मनुष्य शरीर जो है उसको आज भी पूरे तरीके से उसके रचना एवं क्रिया जो साइंटिस्ट है या डॉक्टर्स है वो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको उसको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो त्रिदोष थियरी अगर आपके समझ में आ गई तो ये कितनी भी क्लिष्ट प्रक्रियाएं हो मनुष्य शरीर की या व्याधियां हो, उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकते हो। So it can help you not only to describe their physiology, but it will help you what to offer or what to advise to your patients, that the food or lifestyle, which profession, ideal profession that person has to choose, everything that is called as a prakriti। Okay, prakriti ये विषय जो है वो मनुष्य का स्वभाव है या उसका बायो कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आप कोई भी लैपटॉप लेते हो या मोबाइल लेते हो तो उसका रैम रोम ये सब सारी चीजें होती है, हार्ड डिस्क कितने की है, उसमें रैम कितने हैं, उसमें बाकी के फंक्शंस क्या है, प्रोसेसर कौन सा है। वैसे ही हर एक मनुष्य की प्रकृति रहती है, उसका स्वभाव रहता है, वह जानना बहुत ही आवश्यक होता है उसके स्वास्थ्य रक्षण के लिए एवं चिकित्सा के लिए। और वह प्रकृति, शारीरिक प्रकृति जो बताई है वो दोष की प्राधान्यता के अनुसार बताई है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति इत्यादि। तो ये 7 प्रकार की प्रकृति होती है। तो उसको आगे आप क्रिया शरीर विषय में बहुत अच्छे से देख रहे हैं। त्रिदोष सिद्धांत का क्या महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी स्वास्थ्य की व्याख्या की गई है या विकार की यानी डिसीज की व्याख्या की गई है, उसमें बहुत सिंपल श्लोक आपको सामने रखे हैं। देखिए, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, या अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला अध्याय का रेफरेंस ले तो रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, यानी क्या है, तो आयुर्वेद के दृष्टि से व्याधि क्या है, इन वात पित्त कफ का जो हार्मनी या बैलेंस रहता है वो डिस्टर्ब होना, तो यही विकार है या व्याधि है। और इन वात पित्त कफ का अगर साम्य होता है, उनका बैलेंस बना रहता है, तो वह है अरोगता। यानी अरोगता माने क्या है, अरोगता यानी स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ तो हेल्थ क्या है, तो वात पित्त कफों का बॉडी इक्विलिब्रियम, ये है स्वास्थ्य। ओके, सो वात पित्त कफ, इसको आप ठीक से समझे तो इन शॉर्ट आपको बता दूं, वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एंड सेंसेशन इंक्लूडिंग मोटर एक्शंस। तो जो भी क्रियाएं हैं वो वात दोष से होती है। वो पल के झपकाना हो, आप क्रिकेट खेलते हो तो बैट आप घुमाते हो, बल्ला घुमाते हो, या फिर आपकी जो बावल मूवमेंट्स है वो सभी इसमें वात दोष के मूवमेंट्स में आती है। पित्त दोष जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिको केमिकल एक्टिविटीज स्पेशली रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन, रोटी चपाती दाल चावल जो हम खाते हैं तो वो बॉडीली टिश्यू में कन्वर्ट करने के लिए पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है। इन सिंपल वे आज के लिए आपको बताए तो। और कफ दोष क्या है, तो कफ दोष इज द सब्सटेंस which maintains the compactness in the body, मीन्स दो मॉलिक्यूल को इकट्ठा रखना, ये कफ दोष का काम है। यानी बॉडी को इकट्ठा रखना, या हम सिंपल समझेंगे साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट में रहता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कफ दोष। दो सेल्स जो है उसका बंध या उसका कांटेक्ट है ज्यादा से ज्यादा देर तक रखना, डीजनरेशन नहीं होने देना, ये कफ दोष का काम है। ठीक है, तो वात दोष है उसको हमने समझा कि ये बॉडी मूवमेंट्स है विदाउट विच वी कैनॉट डू एनीथिंग। ओके, जैसे एब्सॉर्प्शन है, सेल आयन एक्सचेंज है, नर्वस सिस्टम कंडक्शन है, ऑल टाइप ऑफ एक्सक्रेशंस है, ब्रीथिंग मूवमेंट्स है, ऑल टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स है, वो वात दोष की वजह से है। पित्त दोष क्या है, तो विशेषतः फायर और वाटर से यानी अग्नि महाभूत और जल महाभूत से बना हुआ है, तो इसको वो क्वालिटीज एग्जैक्टली अपोजिट उससे ये बना हुआ है, तो इट इज लाइक एन एसिड। ओके,
which are the fluids in their essential state, especially. Okay. So Pitta governs those principles of the body, that is the transformation, especially which digests the food, especially on the gross and the cellular or deep level also. And it is also responsible for non-bodily activities, non-visible activities, I should say actually. It keeps the temperature of the body, it gives you vision, you can see with it, it gives color to your body, skin tone to your body, etc. And the kapha dosh is having cohesive or lubricating force, which holds together the opposite movements such as Jala and Prithvi Mahabhut is a combinedly forming kapha dosha. So imagine mixing stone and water. Is it possible? But the thing is like that, the kapha dosha. So kapha force makes body stable. The structures well held by the muscles, tendons, ligaments, fats. So it also forms the protective covering and fluid such as the meninges, or we can say the joint coverings, etc. So those are the things about Vata Pitta Kapha in short. Prakriti we have already discussed. So we will stop here for today. Okay, thank you. So we will take question and answer on our we can say WhatsApp if you have. So Prakriti is Vata Pitta Kapha again. Vata Prakriti, Pitta Prakriti, Kapha Prakriti, Vata Kapha,